Hello, class ninth. Today we are going to study chapter number 3 in your economics. It is the last chapter for this session in the economics, poverty as a challenge. In the part first, we discuss in this chapter about the introduction about the poverty and how poverty affected the lifestyles of the people and life or survival of the people in the urban and rural areas both, and what are the different types of factors which affected the poverty, and what are the different types of regions which are responsible to cause the poverty, what is the social exclusion, what is the vulnerability, poverty line, different features are we have also discussed. So let me start this chapter. In the introduction of this chapter, we see that in our daily life we see many types of laborers and poor peoples who come across in our life or in our daily life. They could be landless laborers in the villages, or maybe they are the various types of laborers in the overcrowded jhugis in cities, or they could be work on the daily wages workers and construction sites, or the child workers in dhabas. They could be also in very poor condition. They could also be a beggars with children in litter tatters, or it means we almost see the poverty almost around us. And roughly, if we estimate about the poverty, then 270 million of people in India, in which uh, according to 2011-12 census, maximum of 27 crore people in India who are roughly living in the poverty. It means there is a huge number of the poverty peoples in India. This means that India is the largest single concentration of the poor in the world, and it is very serious problem of our country also. Two typical cases of poverty are, first is the urban cases and another one is the rural case. In the urban case, we discuss about the people who are working in the factories, or they are almost earn around 1500 per month to 5000 per month, and they also sustain in this meager amount of his family of 6 to 7 members. And their fathers are also almost independent, also dependent on these laborers due to the landless laborers, or their mothers are working, poor working housewives, and yes, their wives are also a simple housewife, and they lived in the outskirt of the city, and his wife, mother, and evenly her daughter is also his daughter is also doing the household jobs in the several other homes to earn maximum 800 to 1000 rupees per month by the household chores. And their sons or father are also working in the different types of places like hotels or in the private offices to earn maximum 3000 rupees per month. So meanwhile we see that these are the peoples who are earned from their hand to mouth, and they are living in very tremendous disastrous or hazardous condition of poverty. So they are not insure about their health and their healthcare facilities, and they have also not accesses the healthcare facilities, or their babies are also, younger children's kids are also undernourished, survives in the undernourished condition. Or this is the whole example of in the for the urban areas. But in the rural case, we see that there are the many types of landless laborers are also there, who maximum earn 500 rupees to 2000 rupees per month from a hardship during the whole day to do the job in some other agricultural farms. And they are evenly face very much crisis
or they earn their hand to mouth food material, or only wheat or dal. They are only depend on the wheat or dal, or even some types of vegetables for toiling in the farm throughout the day. So they are very weak in conditions, or their father and mother is also a very poorer patient of tuberculosis, cancer, etc. things. So they are suffering from the various types of diseases, and life is slowly ebbing away. Although there is a primary school, but they are not have enough money, or not general awareness to send their children in the societies schools, or in the primary schools of the village, because they are not awareing about this. They generally think that if they bring their child, or they send their child into the schools, so who can do the household chores or household jobs, or who can earn, who are earn the money, who has earned the money almost. So there's a big problem in front of them, that how they can earn and running their survivals. So these things are happened in those before the by those peoples, or in the life of these peoples, which create the different types of problems ड्यूरिंग द पॉवर्टी. ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे ये डिस्कस अभी किया कि देखिए दो प्रकार की यहाँ पॉवर्टी दिखाई गई है, एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में. अर्बन एरिया में हमने जनरली देखा है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, और जाके फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं. फैक्ट्रियों में जॉब करने के दौरान वो 500 से 1500 से 2000 5000 तक कमा लेते हैं. जो कमाते भी हैं तो उसमें उन्हें दिक्कत ये पड़ती है कि वहाँ पर उनको अपने माता पिता को भी पैसे भेजने होते हैं, और उनके माता पिता लैंडलेस लेबरर्स हैं गांव में, तो जनरली वो उनके पास कुछ होता नहीं है, तो जनरली इसी पर डिपेंड है. वाइफ जो है लैंडलेस ये जिन वर्कर्स की हैं, वो कहीं दूसरी जगह जैसे कि मेड बन जाती हैं और जॉब करती हैं. जो उनकी बेटी है बड़ी, वो छोटे छोटे अपने भाई बहनों को संभालती है, वो भी कहीं कहीं नहीं जाती. लड़का जो है बड़ा, वो दूसरे की शॉप में काम करता है. इस तरीके से लैंड एरिया में देखें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को. जहाँ पर लैंड एरिया का मतलब यहाँ पे हुआ अर्बन एरिया से मेरा मतलब है. अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है अर्बन केस में, वो इस तरीके से लोग झेलते हैं. और अब अगर रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में हमने जनरली देखा है कि लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं. वो हार्डली जो अर्निंग करते हैं वो बहुत ही कम होती है, लगभग 500 से 1500 रुपये, 2000 रुपये पर मंथ देखें. और उनके जो घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं सर्वाइवल करने के लिए, जिसमें माता पिता जनरली जो है वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे टीबी है, कैंसर है, और पैरालिसिस वगैरह. और वाइफ भी काम कर रही है और ख़ुद भी अपना काम कर रहे हैं. जो बच्चे हैं वो घर में खाना पका रहे हैं, जो लड़कियां हैं बड़ी, और छोटे छोटे सिबलिंग्स को भी देख रही हैं, और लड़के वगैरह बाहर भी कमाने जा रहे हैं. जनरली देखा जाए तो ये लोग जानवर वगैरह भी पालते हैं, उनके लिए भी करते हैं, लेकिन वो खाली हैंड टू माउथ ही जीते हैं. तो बच्चों हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ है यहाँ भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और अर्बन एरियाज़ इनमें भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है. तो यानी कि पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या हुआ? पॉवर्टी का मेन रीज़न अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें 2-4 मेन रीज़न मिलते हैं. उनमें मेन फर्स्ट रीज़न क्या है? लैंडलेसनेस, यानी कि भूमिहीनता, यानी कि भूमि नहीं है उनके पास. दे आर नॉट हैविंग एनी accessibility of land area on which they sow or they plow or they do the agricultural activities. Second is unemployment. Unemployment is the maximum a big problem. Then third one is the size of families. Their families are very huge in numbers of members in their families, or they have very much responsibility for the many members in their families for their survivals. They are being illiterate persons, so they are generally not aware about the any facilities of education in their regions. And they also having the poor health status or malnutrition. There is a huge problem of child laborship, because child labor is also a big problem there. Or helplessness, this is also here uh, generally seen in these areas. So now we discuss about what is the big challenge of this type of poverty. So these two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter.
बच्चों, गरीबी का मतलब हुआ कि लोगों के पास ना रहने को है, ना खाने को है, भूख है। और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ऑफ अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। पॉवर्टी वो कंडीशन है जहाँ पर छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते उनके पेरेंट्स, खाने को इनफ होता नहीं है, हंगर है, स्ट्राइव है, स्टारवेशन है। साथ ही साथ में अगर कोई पेशेंट है तो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है हॉस्पिटल्स का। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। पॉवर्टी का मतलब ये भी है कि वहाँ पर पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी नहीं है, रहने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। वहाँ पर रेगुलर जो इनकम लेवल है वो भी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास मिनिमल जॉब है, बहुत ही कम जॉब है, रेगुलर जॉब है ही नहीं। तो अबव ऑल मीन दैट लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप बिना किसी मदद के आपको रहना है। वेरी ट्रमेंडस कंडीशन, बहुत ही बेकार कंडीशन, जहाँ से इंसान वैसे भी उब जाएगा। और देखिए अब इसमें क्या होता है कि पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इलिटरेटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। मतलब आपको गरीब लोग जनरली सभी जगह मिल जाएंगे। जैसे जो बेचारे बहुत पुअर होते हैं, बहुत ही जैसे फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फार्म्स में काम कर रहे हैं, खेतों में, गवर्नमेंट ऑफिस में भी मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगे, जो कि जनरली ऐसी सिचुएशन होती है उनके सामने, जो इल ट्रीटेड पीपल, जिनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, बीमारी है। अब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स आउट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी। यानी कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो पॉवर्टी की लाइन में जीते हैं। अब आता है कि सोशल एक्सक्लूजन्स क्या है। यानी कि जो पॉवर्टी पीपल हैं या गरीब पीपल हैं वो उनमें इलिटरेसी लेवल बहुत कम होता है, जनरल रेजिस्टेंस बहुत कम है, माल न्यूट्रिशन है, इसलिए उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है। लैक ऑफ एसेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं बढ़िया है उनके पास कि उनको कोई अच्छी साफ़ सुथरी जगह जॉब मिल जाए, अच्छा कमाएं, लेकिन ये सब लैकिंग है। और लैक टू असेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पीने का पानी अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है, सैनिटेशन कंडीशन नहीं है। और साथ साथ में इसका मतलब है कि पॉवर्टी का जो बेस है वो क्या है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग मोर कॉमन। तो यानी कि दो फैक्टर आते हैं, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। तो ये क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन? सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्रंट फैसिलिटीज़। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू एक व्यक्ति को या पूरे ग्रुप को डिफरेंट फैसिलिटीज़ से, डिफरेंट प्रकार के बेनिफिट से और तमाम ऐसे अवसर जिनको लोग एंजॉय करना चाहते हैं, जिनसे उनकी बेटर कंडीशन हो सकती है, उन सब चीज़ों से वंचित रखना। तो एक हमारे समाज में बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इन सब मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, तो उसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। एक टिपिकल एग्जांपल है, जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, उसके अंतर्गत SC STs को, BCs को पहले क्या करते थे, गांव से बाहर रखते थे। तो उसका मतलब है कि उनको जो जनरल फैसिलिटीज़ थी गांव की वो नहीं दी जाती थी। तो इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे आप चले जाइए गाँव में तो ऐसा आज भी होता है कि जैसे जो SC STs के लोग होते हैं उनको गांव के कुएं से, पंचायत घर से पानी नहीं भरने देंगे, और मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है, उनके पास अपने खेत खलियान भी नहीं है जिससे कि वो अच्छी तरह सर्वाइवल कर सकें। तो उनको बेचारों को मांग के खाने पे जीने पे मजबूर होना पड़ता है, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए वो आज भी मजबूर हैं। तो ऐसी कई तरह कंडीशन, जिसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। तो इसकी आप डेफिनेशन ढंग से समझ लीजिए। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्रंट फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर बेटर इंजॉयज देयर लाइफ। ओके, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी ग्रुप के पीपल्स को फ्रंट फैसिलिटीज़ में, यानी कि जो फ्रॉम जो डिफरेंट टाइप की उनको बेनिफिट्स मिल सकते थे, जो फैसिलिटीज़ यानी कि सुख सुविधाएं मिल सकती थी, जो कोई अवसर मिल सकते थे जिसको दूसरे लोग इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह सर्वाइव करते हैं, तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ इनको नहीं दी जाती। तो इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। अब दूसरा आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मीज़र। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि पॉवर्टी को नापने का, तौलने का एक तरीका है जिसमें कि एक ग्रेटर पॉसिबिलिटी या ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें सर्टेन कम्युनिटीज़ के मेंबर्स जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, इंडिविजुअल जो कि विडो हैं या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है,
जो हमेशा पुअर रह जाते हैं। जैसे कि वल्नरेबिलिटी एक डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एजुकेशन हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर ये संभावना देखी जाती है कि बहुत सारे ग्रुप के पीपल ऐसे होते हैं जो कि गरीब रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो मान लीजिए कोई गरीब विधवा है किसी समाज में जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, या उसका पति नहीं है तो उसकी देखभाल नहीं हो पाती है, उसके लिए अर्निंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो बेचारी हार्डशिप से अपने लिए अर्न करती है। दूसरे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिस पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है उनके पास, एसेट्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ऐसे में वो लोग अब एक बहुत बड़े हायर रिस्क ग्रेटर रिस्क पर जीते हैं, जिसमें कि ये इन ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। और जनरली देखा गया जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं कई जगह, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, टेररिज्म वगैरह है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग जनरली बहुत गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनको डिफरेंट टाइप की जो बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कैसेट एजुकेशन, लाइफ सर्वाइवल के लिए उनको फूड है, हेल्थ सैनिटेशन कंडीशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये सब अवेलेबल नहीं हो पाती। अब इसका मतलब है जो वल्नरेबिलिटी है वो डिस्क्राइब क्या करती है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबडी। मतलब वल्नरेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि डिस्क्राइब करती है, और वो ये डिस्क्राइब करती है कि जो सबसे ज़्यादा अधिकतम पॉसिबिलिटी या अधिकतम प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है, यानी कि एडवर्स कंडीशन मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर मान लीजिए सुनामी आ गया, कोई ऐसी ट्रिमेंडस कंडीशन आ गई है जिससे कि नेचुरल डिजास्टर तो है ही, और उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं तो उनकी लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत दिक्कत हो गई है, उनके पास खाने को भी नहीं बचा है, भूख से तड़प रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है जिसमें जॉब की फैसिलिटीज़ भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटी में शामिल की जाती हैं। तो वल्नरेबिलिटी की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप सिर्फ इतना लिखिए कि इट डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, कि ऐसे लोग जो कि आने वाले समय में या कई सारे सालों से वो बेचारे गरीब हैं और गरीब रहने को मजबूर हैं, तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है। अब है नेक्स्ट बच्चों पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? गरीबी रेखा की हम जब बार बार बात करते हैं तो पॉवर्टी लाइन में क्या बताया जाता है कि a common method used to measure poverty is based on the income और consumption levels। जनरली जो एक मीज़र अप्लाई किया जाता है पॉवर्टी को नापने का वो क्या है? पॉवर्टी लाइन। यानी कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पॉवर्टी को जो बेस करते हैं कि गरीबी हो किसके पास, कौन गरीब है कौन नहीं है, तो हम उसके बेसिक इनकम लेवल पर उसकी बात करते हैं कि इस इनकम लेवल से जो व्यक्ति ऊपर है वो ठीक है, और जिस इस इनकम और कंजप्शन लेवल से व्यक्ति नीचे है तो वो पुअर है। तो अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। मतलब एक व्यक्ति को गरीब हम तब कहेंगे जब उसकी जो इनकम और कंजम्पशन यानी कि जो उसकी आय है और जो उसका व्यय है कंजम्पशन लेवल, वो एक पर्टिकुलर हमने एक मिनिमम लेवल डिसाइड किया है उससे नीचे हो जाता है, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, जो कि उसकी इस लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉवर्टी लाइन को डिफरेंट टाइप का माना गया है, इसलिए पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, इसलिए पॉवर्टी लाइन को जो है हम बता सकते हैं कि ये समय और प्लेस के अनुसार अलग अलग चेंज हो सकती है। अब ईच कंट्री यूजेज एज इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। हर एक जगह की अलग अलग पॉवर्टी लाइन का बेसिक क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस में देखा गया है कि 2011-12 के सेंसस से देखा गया पॉवर्टी लाइन जो हमारे यहाँ पर्सन की फिक्स की गई थी वो 816 रुपये पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज एंड फॉर ₹1000 फॉर द अर्बन एरिया। 2011-12 में डिसाइड किया गया था कि 816 रुपये पर मंथ, अगर किसी गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है उसकी इनकम 816 रुपये से कम है पर मंथ, तो वो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे आएगा। और अगर कोई अर्बन एरियाज में शहरों में रह रहा है और 1000 रुपये से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन की रेखा में आएगा। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है बच्चों। अब तो ये जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसमें कहा गया है कि पर मंथ अगर कोई व्यक्ति रूरल एरियाज में
मिनिमम 5,000 रुपीज़ से नीचे कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। और अगर शहरी क्षेत्रों में कोई रह रहा है व्यक्ति और वो मिनिमम जो है वो 20,000 रुपीज़ से मिनिमम कमाता है, कम कमाता है 20,000 रुपीज़ से, तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। या 15 से 20 हज़ार के रूप में, 20 हज़ार रुपये से, मतलब 15 हज़ार रुपये से कम कमा रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा, जहाँ पर अर्बन एरियाज होगा, शहरी क्षेत्र। अब आता है ये जो सैंपल है, ये डिफरेंट टाइप के सैंपल्स आते रहते हैं जो कि सर्वे करते हैं हमारे यहाँ कि कौन से व्यक्ति जो है सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या ऊपर हैं। अब जाकर के जो सिमिलर फैमिली है अर्बन एरियाज में, वो लगभग 5,000 रुपये पर मंथ हुई है। जो उस समय का क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये पर मंथ 2011-12 में डिसाइड था कि 5,000 रुपये पर मंथ जो अर्बन एरियाज में फैमिली कमाएगी मिनिमम, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे की कहलाएगी। और ये जो सर्वे होता है, ये करता कौन है? ये एनएसएसओ एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये करती है इस तरह के सर्वे, तो और ये बताती है कि हमारे देश में कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। अब आता है पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी का एस्टिमेशन हर साल किया, हर साल तो नहीं करते, लेकिन पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है हर 10 साल में किया जाता है। 1993 से 1994 में का देखा गया था कि 37 पहले 45% थी हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रहते थे। फिर 2004 और 5 में घटा 37.2 हो गया। 2011-12 में 21.9% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। अब 2011-12 में अब देखा जा रहा है कि 269.3 मिलियन पीपल्स जो है उनकी एवरेज इनकम डिक्लाइन हुई है, और 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स पीपल जो हैं वो अब 2.2 यानी कि कुल मिला के 2% हमारे यहाँ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। पता नहीं ये आंकड़े कैसे सही हैं या गलत, ये मैं नहीं बता सकती, बट ये इतना बता सकती हूँ कि ये जो आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत की गई है, इसमें टोटल ये बताया गया है कि नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ पीपल्स पुअर हैं कितने रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ये सेंसस बता रहा है 2011-12 का। ओके, तो फिलहाल हम अभी इसमें इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पार्ट 1 में पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन आपने देखा कि हर 10 साल 11 साल में, हर वैसे तो 5 साल, पहले 5 साल में होता था, अब 10 साल में होने लग गया, तो हर 10 साल में, 8 साल में, 8-10 सालों में हमेशा जो है सर्वे होता है एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो लोग देखते हैं कि पॉवर्टी किस तरीके से हमारे देश में बढ़ रही है, घट रही है, और इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। सो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन अप टू दिस मार्क। आपको अब तक यहाँ जितना मैंने पढ़ाया इतना एरिया समझ में आ गया होगा। पॉवर्टी बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपकी जनरल लाइफ पर डिपेंड है, और आप जनरल अपने एक्सपीरियंस करते हैं अपनी पूरी डेली लाइफ में, कितने लोग गरीब हैं क्या है, तो इसमें बहुत कुछ लिखने को लायक है। तो बच्चों आप इस चैप्टर में फिलहाल अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। ओके।